So this today's lecture is about IELTS reading true, false, not given, and this reading, this session is going to give insight about true, false, and not given. And very importantly, it is important that we learn the basics of true, false, not given before we actually start doing true, false, not given. So uh, let me share some insight into true false not given. True false not given questions requires you to identify if information in a text is true, false, and or not given. And this is probably the most difficult question on the reading paper. I have seen students telling me that no matter which background they are coming from, they usually face lots of issues in true, false, and not given. So this lecture will try to help you out in a way that it will help you clear your doubts, and it will also tell you how to approach true false not given in the future. Now usually as you know that in reading there are 40 questions coming in the examinations, and there are 3 passages, and each passage will be having 13 to 14 questions. Now you can expect one, two, or at max 3 groups of true false not given coming in the real examination. Most probably you can expect one group of true false not given to come in the examination, and each group is going to be having 5 to 7 questions. So as I see, as I read in front of you, usually there are 5 to 7 questions based on true false not given or yes no not given. It is they are brother and sister of each other, so true false not given or yes no not given. And there may be 1, 2, or 3 groups like this. There may be none as well. I mean, very rarely I have seen students telling me that they did not have any questions based on true false not given or yes no not given. But more often than not, you will find out students getting questions based on true false not given, and answers will come in the sequential order. So you can expect true false not given to come in the sequential order only. It would never happen that if you have got questions from 1 to 5, that the answer of the fifth question is going to come first and the answer of first question is going to come last, or there is any change in sequence between 1 to 5. So you can expect the answers to come in the sequential order in the real examination. uh, uh, this is a small example of true false not given or yes no not given. So I have taken this this print screen from one of the books of Cambridge, wherein you can see that there are questions from 27 to 32, and there are questions from, so you can say that you got 1, 2, 3, 4, 5, and 6 questions coming in a group. So you can expect at least one group to come in the real examination. You can also expect, as I have told you, there may be 2 or 3 groups as well. The more the number of groups, the more difficult times you're going to face. Uh, and more importantly, I'll also explain you the difference between true, false, not given and yes, no, not given. Okay. Uh, Now let us try to understand the common problems of true, false, not given. Okay. Now, most of the common problem that I could see is this. First and the foremost common problem is that uh, the biggest problem here is not given option. So most students are not used to answering questions like this, and it causes them lots of problems because they are not sure what to look for. They are also spending too much of time making sure that it is not given, and this affects the rest of their test. So even if you're coming from Gujarati medium background or English medium background, and if you if you have done reading comprehension, more often than not आपने शायद encounter किया होगा true और false को. Not given एक ऐसा पहलू है जो आपने शायद देखा नहीं होगा. Very rarely, unless and until you have started doing IELTS, not given is not possible to be seen. And that is where the problem starts. Not given का मतलब होता है the information is not given in the passage, and this is where students waste most of their time. uh, Students also fail to identify the difference between false and not given. I have also seen students facing lots of problems identifying the difference between false and not given. They sometimes recognize true very easily,
but only when it comes to identifying the difference between false and not given, they create lots of blunders. Another common mistake is identifying keywords in the questions and then trying to find words that exactly match them in the text. You can do this, but more often the words will be synonyms. One of the techniques being taught by most of the institutes, most of the organizations, is that you need to locate the keywords. That means you need to locate the keywords and from the question and try to locate the same keywords in the paragraph. Now, this practice may help you on some occasions, but more often than not, you will have two things. You will waste your time, and secondly, even if you get the answer, it might probably be the wrong answer. So, just identifying the keywords is not the technique that would run, perfectly in all the type of questions, because most of the time you will encounter synonyms आएंगे, and you are not going to get for example the same words that you have got in the question to come in the passage. So you can expect similar words, and more importantly the meaning has to be the same. That's the most important part. And students try to use the information outside the scope of the passage to give the answer. This is probably the most common mistake a student could commit. Now, you need to understand that IELTS can be given by a 60-year-old person, and IELTS can also be given by 12th standard student. I have taught even 17-year-old person. I have even taught 49-year, 50-year-old person. What does it mean? It means that you don't need to utilize any external knowledge in solving the answers of true, false, not given. This is where most of the students commit mistakes. They try to utilize the knowledge that they have gained from their teachers, that they have gained from their experience, that they have gained from their academic studies in giving the answers of true, false, not given. The more confined, the more restricted you are to the boundaries of the passage, the more likely is it going to be for you to get the correct answer. So very important to restrict yourself to the boundaries of the passage. आपको passage के बाहर झांकने की जरूरत नहीं है. अगर आपने बाहरी knowledge का इस्तेमाल करने की कोशिश की, more often than not, you will end up in getting the wrong answer. Okay. Now, the most important thing to remember in is words true, false, and not given. What this true, false, and not given actually mean, and therefore what IELTS wants you to write. Now, in the IELTS examination that you give, you will get against true. You will find out this type of text. If the text agrees with the statement or confirms the information in the statement, the answer is true. That means the information given in the question and the information given in the passage should actually match. It should not be similar. It should be the same. That's where the true comes into action. If the text contradicts का मतलब होता है उसका opposite. विरोधाभास. For example, in Gujarati we say it is विरोधाभास. मतलब इसके totally opposite is the opposite of the information, then the answer is false. And if there is no information, now this is one definition being given by the IELTS people. That means if there is no information or it is impossible to know the answer, then it is not given. For example, not given is not only about information not given in the paragraph. It is also about you not being able to decide whether the answer is true or false. So if you are also not able to decide whether the answer is true or false, then the possible answer is going to be not given. Have you understood the difference between true, false, and not given? I repeat, simple definition, but still very important. If the information given in the statement, that means question, matches the information given in the paragraph, and let me tell you, the meaning should be the same, not similar. Secondly, then it is true. Secondly, if the information contradicts the information given in the paragraph and the information given in the statement contradicts each other, then it is going to be false. And if there is no information, number one, and दूसरा condition है, and if you are not able to deduce, आप ये नहीं कह पाते कि ये सही है या गलत है, whether the answer can be true or false, then also the likely answer is going to be not given. Now, other important part is that just hold on.
Okay. Now, true means that the meaning is the same. It is just similar, then it is false. It is very important for you to understand. True का मतलब होता है मीनिंग सेम होना चाहिए. अगर वो सिमिलर भी है तो आंसर इज गोइंग टू बी फॉल्स. Remember that we are dealing with factual information, so there is no room to say it is similar or nearly the same. तो अगर सिमिलर है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मतलब फैक्ट्स के बेस पे है ये इंफॉर्मेशन. एंड इफ यू आर ट्राइंग टू कंपेयर द इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टेटमेंट विद द इंफॉर्मेशन ऑफ द पैसेज, इट हैज टू बी द सेम, नॉट सिमिलर. अगर सेम है तभी ट्रू ट्रू है. इफ इट इज इवन सिमिलर और इफ इट इज नॉट the same, it is nearly the same, the answer is going to be false. Lots of students believe that statement is true because it kinds of means the same. मतलब सर लगभग लगभग तो सही है ना, तो आंसर ट्रू ही होगा ना. नो, इसमें लगभग लगभग वाली बात नहीं आती. देयर इज नो काइंड ऑफ मतलब उसके जैसा ही है ना. विद दिस क्वेश्चंस ओनली फैक्ट्स, मतलब अगर लगभग लगभग सही है देन इट कैन नॉट बी ट्रू. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू डिवाइड, यू नीड टू मार्क अ लाइन. क्या ये सेंटेंस का मतलब जो क्वेश्चन का मतलब है वो एग्जैक्टली सेम है, तभी जाके आंसर ट्रू होगा. इफ इट इज नॉट द सेम, बिल्कुल बारीक से सिमिलर जैसा है लेकिन सेम नहीं है, देन आंसर इज नॉट गोइंग टू बी ट्रू. वेरी इंपॉर्टेंट. Just because an answer is not given does not mean that there are no words in the statements that match words in the text. This is something that confuses people. If words match, then it must be true or false, right? Not really. This is not a good way to think about these questions because there probably will be matching words for not given answers. You just don't have enough information to answer the question as a whole. Let me explain you. Not given का मतलब ये नहीं है कि अगर आप मतलब you have जो स्टेटमेंट या क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो स्टेटमेंट्स जो है और या तो फिर वर्ड्स दिए वो आप रीडिंग में पाओगे ही नहीं. That is not the meaning of not given. Not given का मतलब होता है, the meaning is that even though the words, the keywords, अगर है for example थोड़े थोड़े words matching भी होते हैं, overall meaning का deduce करना मुश्किल है, then the answer is going to be not given. People always get themselves confused by the very fact कि सर नॉट गिवन का मतलब होता है कोई भी क्वेश्चन की कोई भी चीज पैराग्राफ में नहीं है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. क्वेश्चन के हो सकता है वर्ड्स पैराग्राफ में मिले, लेकिन क्वेश्चन में जो मीनिंग निकलता है वो मीनिंग अगर पैराग्राफ में नहीं है तब जाके आंसर होगा नॉट गिवन. सो अपने जहन में से वो निकाल दो कि नॉट गिवन का मतलब होता है एक भी चीज जो है वो एक दूसरे से मैच नहीं होती. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. क्लियर? ओके, लेट मी गो विद द नेक्स्ट थिंग. नाउ करना कैसे है? The most important thing, ignore anything you already know about the topic and don't make assumptions. Base your answers on the text only. मैंने पहले भी बताया था आपको, the most important thing you need to understand is आपने अपने बाहरी नॉलेज का इस्तेमाल नहीं करना है, आपने assumption नहीं करने हैं. You don't need to go for assumptions that I mean कि मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस से ये है. आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के अंदर दी गई इंफॉर्मेशन तक ही सीमित होना चाहिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस. क्लियर? जस्ट होल्ड ऑन, देयर आर पीपल, व्हाई देयर आर लॉट्स ऑफ जॉय कमिंग. या ओके. सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज आइडेंटिफाई. नाउ ये हिंट बहुत इंपॉर्टेंट है. आई वांट यू पीपल टू कंसंट्रेट ऑन दिस हिंट. Identify any words that qualify the statement. For example, some, all, mainly, often, always, and occasionally. These words are there to testify or test if you have read the whole statement because they can change the meaning. Usually in true, false and not given, qualifiers बोलते हैं इसको, जैसे कि some, all, mainly, often, always and occasionally का इस्तेमाल होता है. This could change the entire meaning of the statement. So whenever you encounter words like this, आपने उसको बारीकाई से देखना पड़ेगा and you need to then find out whether the meaning is the same or not. For example, यहाँ पे लिखा है Pepsi has always made its drinks in the USA has a different meaning from Pepsi has mainly made its drinks in the USA. नाउ पहला जो स्टेटमेंट है उसका मतलब है कि पेप्सी ने सारे ड्रिंक्स जो है यूएसए में ही बनाए हैं, और दूसरा जो स्टेटमेंट है इसका मतलब ये होता है कि पेप्सी ने ज्यादातर ड्रिंक्स जो है वो यूएसए में बनाए हैं. फर्क पड़ जाता है ऑलवेज से और मेनली से.
सो व्हेनेवर ये क्वालिफायर वर्ड्स है, मेनली, ऑफ्टन, ऑलवेज, ये ज़हन में रखो, ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है, ये ट्रू नहीं हो सकता, ये फॉल्स हो जाएगा. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपको लगता है सर काफी चीजें इसमें मैच होती है, पेप्सी भी मैच होता है, हैज में मैच होता है, मेड इट्स ड्रिंक्स इन द यूएसए वो भी मैच होता है, सिर्फ एक ही वर्ड मैच नहीं होता, ऑलवेज और मेनली. ऑलवेज का मतलब होता है सारा का सारा, और मेनली का मतलब ज्यादा हद तक, बट सारा का सारा नहीं. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये छोटे से वर्ड्स मतलब सिर्फ कीवर्ड्स को देख के ज्यादातर बच्चे यही मिस्टेक्स करते हैं. They try to solve true, false, and not given by utilizing the keywords. Keywords की method is one of the most pathetic methods that I have seen. Don't try to utilize keywords. आप इस्तेमाल कर सकते हो to locate the answer, लेकिन then you need to read the entire paragraph, or you need to read the entire context, and बाद में देखना है कि meaning जो निकलता है वो same है कि नहीं. Okay. Be careful when you see words that qualify statements such as suggest, claim, believe, and know. मतलब फॉर एग्जाम्पल द मैन क्लेम्ड ही वॉज अ ब्रिटिश सिटीजन, मैन क्लेम्ड ही वॉज अ ब्रिटिश सिटीजन एंड मैन इज अ ब्रिटिश सिटीजन मीन टू डिफरेंट थिंग्स, दोनों चीज अलग अलग है. मैन क्लेम्ड ही वॉज अ ब्रिटिश सिटीजन, द मैन इज अ ब्रिटिश सिटीजन. क्लेम का मतलब वो दावा करता है कि मैं ब्रिटिश सिटीजन हूं, वो दावा करता है, वो सही दावा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. और मैन इज अ ब्रिटिश सिटीजन इज अ फैक्ट, मतलब कि वो ब्रिटिश सिटीजन है. सो अगर पैराग्राफ में ऐसा दिया है कि मैन क्लेम्ड ही वाज अ ब्रिटिश सिटीजन, और क्वेश्चन में दिया है मैन इज अ ब्रिटिश सिटीजन, आंसर इज गोइंग टू बी फॉल्स, बिकॉज क्लेम का मतलब कतई ही नहीं दैट ही इज हिमसेल्फ इज अ ब्रिटिश सिटीजन. तो ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आई वुड लाइक टू रिपीट: सम, ऑल, मेनली, ऑफ्टन, ऑलवेज, ओकेशनली. मैं आपको 2-3 और बोलता हूँ: सोलली, इनवेरिएबली. ये ऐसे वर्ड्स है जो बहुत क्वालिफाइंग है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा. मोस्ट ऑफ द वर्ड्स, मोस्ट ऑफ द पीपल, ये छोटे छोटे वर्ड्स है, वो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं. आपको उस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है. सजेस्ट, क्लेम. मुझे याद आ रहा है एक पैसेज जो मैंने करवाया था आज से काफी टाइम पहले. उस पैसेज में ऐसा था, द पैसेज वाज अबाउट एन आर्किटेक्ट. आपको शायद पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया का ओपेरा हाउस है, ऑस्ट्रेलिया में ओपेरा हाउस है, उसका आर्किटेक्ट है जॉन वुड्सजॉन. अब वुड्सजॉन जो बना रहा था ओपेरा हाउस, बनाते बनाते गवर्नमेंट को लगा कि वुड्सजॉन काफी पैसे, उसकी जो डिजाइन है, वो आर्किटेक्ट था, उसकी डिजाइन है वो बहुत महंगी हो रही है. तब ऑस्ट्रेलिया इतना प्रॉस्परस कंट्री नहीं था, तो बहुत महंगी डिजाइन हो रही थी. तो वो गवर्नमेंट ने बोला, भाई उर्जॉन जी, हम आपकी डिजाइन की कदर करते हैं, बट विल नॉट बी एबल टू कंस्ट्रक्ट ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू योर डिजाइंस. तब उर्जॉन को अच्छा नहीं लगा, और बाद में उसके और गवर्नमेंट के बीच में नोकझोंक हो गई. देयर वाज अ बिटर अल्टरकेशंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड जॉन उर्जॉन. और बाद में बड़ी गुस्से में आके, इन अ फीट ऑफ रेज, गुस्से में आके उर्जॉन ऑस्ट्रेलिया चला गया, ऑस्ट्रेलिया से बाहर निकल गया. एंड व्हाइल ही वाज लिविंग ऑस्ट्रेलिया, ही वाउड मतलब उसने शपथ ली कि मैं ऑस्ट्रेलिया वापस कभी नहीं आऊंगा. ये पैसेज है, देखिए समझने वाली बात है, ये पैसेज है जो एग्जाम में दिया गया था. ये पैसेज में ऐसा दिया था. अब मतलब पैसेज में ऐसा दिया था कि उर्जॉन ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द बिहेवियर ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि उर्जॉन के हिसाब से कंस्ट्रक्शन की जाए. और उर्जॉन बड़े गुस्से में, इन ए फीट ऑफ रेज, ऑस्ट्रेलिया छोड़ के चला गया, और उसने शपथ भी ली, वाउड, मैं वापस ऑस्ट्रेलिया नहीं आऊंगा. वैसा पैसेज में दिया है. और क्वेश्चन में दिया था उड्सॉन नेवर रिटर्न टू ऑस्ट्रेलिया. तो उड्सॉन नेवर रिटर्न टू ऑस्ट्रेलिया वो फैक्ट है, उसने शपथ ली थी, वो शपथ, सर वो तो आर्किटेक्ट है तो वो शपथ मानेगा, वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है. आंसर उसका था, फॉर एग्जांपल, हमें पता नहीं है, क्योंकि अगर उसने कहा है कि नहीं है, सो दिस कैन नॉट बी ट्रू. उसने जो शपथ ली है डज नॉट नेसेसरली मीन कि वो शपथ को वो इज गोइंग टू रिस्पेक्ट दैट. तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. किसी ने सोचा है, किसी ने ऐसी शपथ ली है, उसने स्वेर किया है, और जो फैक्ट्स है, उन दोनों में आसमान जमीन का फर्क है. इन दोनों को आप ट्रू नहीं कह सकते. जैसे कि यहाँ पे लिखा है, द मैन क्लेम्ड ही वाज अ ब्रिटिश सिटीजन एंड द मैन इज अ ब्रिटिश सिटीजन. इन दोनों में फर्क है. दिस सेंटेंसेस कैन नॉट बी ट्रू. ओके, देयर एटलीस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, देयर विल बी एटलीस्ट वन ऑफ ऑल थ्री आंसर्स. इफ यू डोंट हैव एटलीस्ट वन ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन, यू हैव एटलीस्ट वन आंसर रॉन्ग. नाउ मैंने रीड तो कर लिया, मैं समझाना चाहूंगा.
कि अगर फर्स्ट करो आपके 6 to 7 एक ग्रुप में 6 to 7 ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन है और आपने सारे अटेंड कर दिए, आपने पहले का आंसर ट्रू, दूसरे का फॉल्स, वापस ट्रू फॉल्स वैसे करके सारे आंसर्स दे दिए और एक भी नॉट गिवन नहीं आया, तो ऐसा नहीं होगा। या तो फिर आपने ऐसा किया कि पहला ट्रू आया, बाद में नॉट गिवन और ट्रू नॉट गिवन, मतलब सारे 6 है वो ट्रू और नॉट गिवन है, मतलब एक भी फॉल्स नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका कोई भी एक आंसर गलत है। आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अगर एक ग्रुप है, भले एक तो एक बार ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन तो आएगा ही आएगा। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भले ऐसा नहीं है जैसे कि 6 क्वेश्चंस है तो दो ट्रू, दो फॉल्स, दो नॉट गिवन, ऐसा नहीं आ सकता, ऐसा शायद नहीं हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि एक भी ट्रू, एक भी फॉल्स या एक भी नॉट गिवन ना आए। तो अगर कोई ग्रुप है उसमें ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन एक बार तो आना आएगा ही आएगा। तो अगर आपने वो मिस कर दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका कोई भी एक आंसर गलत है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके, fine. Any questions, any doubts, students, in this up to this point of time? You can message me if you've got any doubts up to this point of time. You should not be asking me questions, but I hope it is understood up to this point of time. Any questions, students? Is it clear? I want the messages. Yeah. 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 Tell me. Clear? Okay, fine. Not an issue. So, the most important thing, ये बहुत important है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हाँ, अब लेट अस गो फॉर द टॉप टिप्स। मैंने ये बताया थे, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, डोंट स्कीम एंड स्कैन द टेक्स्ट टू, मैं 5th पढ़ रहा हूँ। डोंट स्कीम एंड स्कैन द टेक्स्ट टू फाइंड द फाइनल आंसर। you will have rate you will have to read the appropriate part of the text very carefully in order to understand what the author means. Now मैंने बताया वैसे कि स्कीमिंग और स्कैनिंग की मेथड, these are two fundamental methods of true for I mean reading. इसका मतलब ये हुआ कि you are not reading each and every word, लेकिन true false not given में ऐसी जल्दबाजी मत करें। फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर आप कीवर्ड मिला आपको, जैसे कि वर्ड मिला, आपको लगता है कि यहीं पे कहीं पैराग्राफ के कहीं पे इर्द गिर्द के आंसर है, फिर वो चीज को आपको बारीकाई से रीड करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट रीड इट एब्रप्टली, यू कैन नॉट रीड इट यू जस्ट कैन नॉट सिंपली स्कीम और स्कैन इट। आपको उसको ठीक से रीड करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट जस्ट कीवर्ड्स मार्क कर लिया, वैसा नहीं चलेगा। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में अगर आपने जहां पे आंसर है उसको बारीकाई से नहीं पढ़ा, then you are most likely to give the wrong answer. तो जहां पे भी आपको लगता है कि उसका आंसर है, उस चीज पहले आंसर ढूंढने के लिए शायद आप स्कीमिंग और स्कैनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन व्हेन यू बिलीव दैट ये पैराग्राफ की दूसरी और तीसरी और चौथी लाइन में आंसर है, तो वो दूसरी, तीसरी और चौथी लाइन बिल्कुल ठीक से पढ़े, क्योंकि उसमें छोटी छोटी चीजें हैं, वो डिफाइन करती है ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है, एंड व्हाट इज नॉट गिवन। क्लियर? ओके, नाउ don't look for words that exactly match those in the statements. You should also look for synonyms. Remember that you are matching meaning, not words. You don't expect to have the same words to come in the passage. अगर statement मतलब के question में आपने जो words लिए, अगर वो आप ढूंढने जाओगे और हो सकता है वो शायद paragraph में ना मिले, so you'll have to also find out कि ये word है उसका synonym क्या हो सकता है, शायद वो paragraph में हो. So it is important to understand कि डोंट लुक फॉर वर्ड्स। जैसे कि काफी लिसनिंग आपने किया, मैम ने लेक्चर लिया था, उसमें शायद कीवर्ड्स होते हैं, यहाँ पे कीवर्ड्स होंगे लेकिन कीवर्ड्स शायद ना भी हो। यू मे आल्सो हैव सिनोनिम्स which may be similar to the which may be the having the same meaning as you have got in the question. Okay, दूसरी important चीज, if you can't find the information you are looking for, then it is probably not given. Don't waste time looking for something that is not there. अगर आपने पैराग्राफ पढ़ा, देखिए जैसे कि ओवरऑल आपको ये समझना है कि अगर फर्स्ट करो कि 4 पैराग्राफ्स है, देयर आर 4 पैराग्राफ्स एंड यू आर डूइंग द फर्स्ट क्वेश्चन, सो यू कैन एक्सपेक्ट द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन टू कम इन द फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ। तो अगर वो फर्स्ट और सेकंड, बिकॉज मैंने बताया था कि आंसर्स आर ऑलवेज गोइंग टू कम इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, मतलब एक के बाद ही दूसरे का आएगा, दूसरे के बाद तीसरे का आंसर आएगा। ऐसे केस में इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर फर्स्ट करो आपने पहले क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, उसका आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, और पहले 2 पैराग्राफ में उसका आंसर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि वो नॉट गिवन है।
फिर आपको तीसरा और चौथा पैराग्राफ रीड करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि या तो फिर पूरा रीड करो वापस रीड करो, सर नहीं मिल रहा है आंसर, तो इसका मतलब हुआ भैया कि इट इज नॉट गिवन. व्हाई शुड यू बी वेस्टिंग योर टाइम in finding out the answer again and again? This is going to end up, you are going to end up in wasting lots of time. तो अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है, जैसे मैंने बताया, the answer is going to be not given. Now not given मैंने बताया था, वैसे not given does not always mean the information is not provided. It can also mean you are not able to decide whether the information is true or false. मैंने पहले भी बताया था, नॉट गिवन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है. कभी कभार ये भी होता है कि इसका आप ये तय नहीं कर पाते वेदर द आंसर इज ट्रू और फॉल्स. ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है. अगर ऐसा भी केस है, देन ऑल्सो द आंसर इज गोइंग टू बी नॉट गिवन. Answers are in the same order they appear in a text. Do not waste time going back. Keep on reading. मतलब सीक्वेंस में आएगा. मैंने पहले भी बताया था कि आंसर्स ऑफ ट्रू फॉल्स, देखिए इन IELTS रीडिंग देयर आर 15 to 16 टाइप ऑफ क्वेश्चन. सारे के सारे क्वेश्चन टाइप्स में आंसर सीक्वेंस में नहीं आते, लेकिन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन तकरीबन 11 से 12 क्वेश्चन टाइप्स ऐसे हैं जिसमें आंसर ट्रू सीक्वेंस में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल समरी छोटी है तो आंसर शायद सीक्वेंस में ना आए, लेकिन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन द आंसर इज नेसेसरली गोइंग टू कम इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बार बार वापस देखने की कोशिश मत करें, तो आंसर नॉट गिवन होगा. और यही इंपॉर्टेंट है, अगर अदरवाइज क्या होगा, यू विल बी वेस्टिंग लॉट्स ऑफ टाइम. ओके, एंड फाइनली yes no not given questions are slightly different because they deal with opinion. True false not given questions deal with facts. मतलब अगर yes no not given questions आते हैं और true false not given, दोनों तरफ पे questions आ सकते हैं. वैसे देखा जाए तो true false not given and yes no not given are same. थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि yes no not given deals with opinion, ऑथर के व्यू से सहमत है कि नहीं वो फाइंड आउट करने का होता है. while true false not given questions deal with facts. facts मतलब फिगर्स से. बताया मैंने, आपको खुद को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. मोर और लेस द टेक्निक ऑफ सॉल्विंग yes no not given and true false not given remains the same, so you don't need to worry about that part. ओके, अब स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं. सर कौन सी स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल किया जा सकता है? नंबर 1, always read the instructions carefully and make sure you know if it is true false not given or yes no not given. देखिए ये छोटी सी चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट है. अगर एग्जाम में ट्रू फॉल्स नॉट गिवन दिया है और अगर आपको आंसर ट्रू लिखना है और जल्दबाजी में अगर आपने यस लिख दिया, तो आंसर इज कंसिडर्ड एज रॉन्ग. ट्रू है तो ट्रू ही लिखना है, फॉल्स है तो फॉल्स ही लिखना है. आप उसके बजाय नो नहीं लिख सकते. एंड नॉट गिवन इज नॉट गिवन, दैट इज फाइन. So important because the computer will identify that as a wrong answer. So if you have written yes instead of true, the computer will think that it is a wrong answer. So your answer is going to be marked as wrong. So इतनी जल्दबाजी भी नहीं करनी है कि आप ट्रू का यस कर दो, नो का फॉल्स कर दो और वाइस वर्सा. You need to make sure that you write the correct answer. Read all the statements carefully, trying to understand what the whole sentence means rather than simply highlighting keywords. Watch out for qualifying words such as some or always. Keywords आप इस्तेमाल कर सकते हो in locating the answer, but keywords should not be the determining factor of getting the right answer. Keywords को यूज कीजिए, लेकिन आंसर पैराग्राफ में कहाँ है उसको शायद लोकेट करने के लिए, बट उसके ऊपर से आंसर नहीं होना चाहिए. और इंपॉर्टेंट चीज, क्वालिफाइंग वर्ड्स मतलब सम, ऑलवेज, मैनी, मोस्ट, ऐसे जो वर्ड्स आते हैं वो मीनिंग इधर का उधर कर देते हैं. सो वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर यू टेक केयर ऑफ दैट पार्ट. ट्राई टू थिंक ऑफ व्हाट सिनोनिम्स माइट बी इन द टेक्स्ट. आप जब क्वेश्चन रीड करते हो, सिन यस नॉट गिवन या ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट. आप क्वेश्चंस जब पहले रीड करते हो तो आप पैराग्राफ में रीड करना चालू करते हो उसके पहले एक बार सोचिए कि अगर ये क्वेश्चन है, उसका ये मेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, तो उसका शायद सिनोनिम क्या हो सकता है. Because you might not get the same words in the passage. You might also get a synonym. This will help you identify the matching part of the text. Match the statement with the correct part of the text. पहला तो ये ढूंढना है कि ये कॉन्सेप्ट, ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये पूरे पैसेज में कहाँ पे है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज इफ यू डोंट अंडरस्टैंड ये पूरा पैराग्राफ पे ऊपर, क्योंकि देखिए ट्रू फॉल्स नॉट गिवन इज नॉट ए ग्लोबल, एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है, ग्लोबल मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन विच इज डिपेंडेंट ऑन द एंटायर पैराग्राफ. ये ऐसा नहीं है. ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आंसर्स आर कंसर्न्ड विथ अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द पैराग्राफ.
तो वो आपको देखना पड़ेगा, वो अगर नहीं किया तो यू आर गोइंग टू वेस्ट योर टाइम. Secondly, focus on the statement again and then carefully read the matching part of the text to establish if it is true or false. तो तरीका ये होना चाहिए, you are going to read the question first. देखिए मैंने बताया वैसे एक ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में तकरीबन 5 to 6 क्वेश्चंस आएंगे एक ग्रुप में. आप क्या करें, यू माइट नॉट वांट टू रीड ऑल द 6 क्वेश्चंस बिकॉज विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर देम ऑल. सारा का सारा आप सोच नहीं पाओगे, याद नहीं रख पाओगे. पहले एक आध क्वेश्चन पढ़िए, ओनली रीड वन क्वेश्चन, वन या टू क्वेश्चंस. इफ नॉट वन देन यू कैन गो फॉर टू बट नॉट मोर. उसके बाद ट्राई टू फाइंड लोकेट द आंसर, पैराग्राफ में कहाँ पे उसका लोकेशन है. एंड फाइनली आप लोकेशन ढूंढने के बाद वापस क्वेश्चन के साथ मैच कीजिए. कि ज्यादातर क्या होता है कि क्वेश्चन रीड किया, फिर आपने लोकेशन निकाल दिया और सीधा आंसर लिख दिया. बट यू शुड ऑल्सो ट्राई टू कंफर्म द इंफॉर्मेशन. आपको लगता है हाँ ये तो ट्रू है, वापस कंफर्म कीजिए, क्वेश्चन को वापस पढ़िए. हो सकता है छोटी छोटी चीज है जो डिफरेंस हो सकता है जिसके कारण आंसर चेंज हो जाए. सो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ट्राई टू फाइंड आउट लोकेट द आंसर, बारीकाई से पढ़ेंगे, देखिए वो ट्रू फॉल्स या नॉट गिवन है. कंफर्म करने के पहले, लिखने से पहले उसको वापस क्वेश्चन के साथ कंपेयर कीजिए and then give the final answer. Underline the words or part of the passage that give you the answer. अब अगर आप for example आपको पता है कि ये पार्ट जो है पैराग्राफ का, ये क्वेश्चन नंबर 13 के लिए है, ये मतलब यहाँ से 13 का आंसर मिला है, आप उसको अंडरलाइन करके रखिए. ये फायदा ये रहेगा, आपने अगर पूरा पैराग्राफ खत्म कर लिया एंड इफ यू गॉट 5-7 मिनट्स टाइम, तो यू कैन अगेन रीचेक. क्योंकि आप वापस रीचेक करने जाओगे और आपने अंडरलाइन नहीं किया होगा तो वापस ढूंढना पड़ेगा, यू विल नॉट बी एबल टू रीचेक प्रॉपर्ली. तो क्या करें आप, अगर आपका क्वेश्चन है और बाजू में पैराग्राफ है, पैराग्राफ में ये क्वेश्चन फॉर एग्जांपल 13 क्वेश्चन है, तो अंडरलाइन करके बाजू में 13 लिख सकते हो आप, छोटा सा, ताकि व्हेन यू हैव गॉट टाइम, अगर भविष्य में आपको, अगर आपके पास टाइम है, 20 मिनट का पैसेज है, शायद 15 मिनट में खत्म हो गया, तो ऐसे केस में आप 5 मिनट का यूटिलाइज कर सकते हैं, सो दैट यू कैन चेक आउट द आंसर्स कि भाई हाँ ये मैंने 13 का आंसर इस सेक्शन से लिया था, तो इज इट राइट. तब मेरा सोचने का नजरिया ये था, अब ये नजरिया ये है, इज इट द सेम दैट आई एम लुकिंग फॉर. तो इट विल हेल्प यू आउट, यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू वेस्ट द टाइम बाय फाइंडिंग आउट द आंसर अगेन. तो जो भी आंसर मिलता है टेक्स्ट में अंडरलाइन कर लीजिए, रीडिंग के उसमें अंडरलाइन कर लीजिए. ओके, इफ यू कांट फाइंड द आंसर, mark it as not given and move on to the next question. there is no negative marking नेगेटिव तो है ही नहीं IELTS में. तो अगर आंसर नहीं मिल रहा है, नॉट गिवन लगा दीजिए और आगे निकल जाइए. एंड लास्ट, इफ यू आर रियली अनश्योर और कांट फाइंड द आंसर, मार्क इट नॉट गिवन. अब ये दोनों में फर्क है. पहला है कि अगर आपको आंसर मिलता ही नहीं है, 7th का मतलब ये हुआ कि अगर आपको आंसर मिलता ही नहीं है तो नॉट गिवन है. दूसरा, अनश्योर हो आप, ये ट्रू है या फॉल्स है, तो भी नॉट गिवन दे दीजिए. आई रिपीट, अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो नॉट गिवन है ही. लेकिन अगर आप ये तय नहीं कर पाते, आंसर तो मतलब लोकेशन तो मिल गई पैराग्राफ में, पर ये तय नहीं कर पाए कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो नॉट गिवन देके आगे बढ़ जाइए. इज इट गेटिंग क्लियर एवरीबडी? श्योर? ओके, अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे. आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस प्रैक्टिकली एंड आई एम गोइंग टू give you this paragraph is in front of you. I want you to give me the answer. The answer ये question ऊपर दिया है. I want you to get me the answer whether it is true, false or not given. I'm going to give you 20 seconds. Get started. आप बॉक्स में लिखोगे whether it is true, false and not or not given.
Yes, get me the answer, true, false or not given. I started getting answers. Yes, I'm looking for. I want answers from everybody. Try it out. Okay, technique is, कौन सी टेक्निक है? You are going to read the question first. The question है, I'm trying to solve this out for you. Question है, the scientists are using a technique from electronics to control specific plant. Scientists are using a technique from electronics to control specific plant. So let me read this passage. In electronics, even the most advanced computer is just a complex arrangement of simple modular parts that control specific functions. The same integrated circuit might be found in an iPhone or in an aircraft. Biologists are creating this same modularity in, wait for it, plants by designing gene circuit that control specific plant characteristics, color, size, resistance to drought, you name it. तो यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब ये है कि साइंटिस्ट उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक की टेक्निक का, स्पेसिफिक टू कंट्रोल स्पेसिफिक प्लांट को कंट्रोल करने के लिए, और उसी चीज का यहाँ पे दोहराया गया है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कि बायोलॉजिस्ट आर द साइंटिस्ट क्रिएटिंग द सेम मॉड्यूलरिटी इन, वेट फॉर इट, बाय डिजाइनिंग जीन सर्किट्स. मतलब कि वो लोग वही टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के लिए जो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं उसी चीज का इस्तेमाल करते हैं टू कंट्रोल स्पेसिफिक प्लांट. सो आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी ट्रू. अंडरस्टूड? श्योर? वही लिखा है फर्स्ट. और दूसरी बात, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, द आंसर इज मोस्ट ऑफ द टाइम, यू नो, ये पहला क्वेश्चन है तो आंसर ये आपको याद रखना जरूरी है. द आंसर इज मोस्ट ऑफन, मोर ऑफन देन नॉट गोइंग टू कम इन द फर्स्ट पैराग्राफ इटसेल्फ. ज्यादा से ज्यादा दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ तो आएगा ही नहीं. सो इंपॉर्टेंट है कि आप अपना टाइम, कीमती समय जाया ना कीजिए. 99%, 90% केस में आंसर इज गोइंग टू कम इन द फर्स्ट पैराग्राफ. इफ नॉट इन द फर्स्ट पैराग्राफ, इट कैन कम इन द सेकंड पैराग्राफ. सेकंड पैराग्राफ में नहीं आया तो आप थर्ड, 3 पढ़ सकते, लेकिन मैं अगर होता तो सीधा नॉट गिवन दे देता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर पहले 2 पैराग्राफ में नहीं है और 5 या 6 के ग्रुप का आंसर होता है, 5 या 6 ग्रुप्स होते हैं एक आंसर में, मतलब एक ग्रुप में 5 या 6 क्वेश्चंस होते हैं, why should I waste my time? So answer has to come in the first paragraph and second paragraph. In this case वही चीज दी है, so answer is going to be no, true. Let me try the next one. Okay, चलिए 20 seconds. Let me help you students. The answer is in the second paragraph. I want answers from all. I am still not getting the answers. Try तो सबको करना पड़ेगा. Okay, somebody is telling. Okay, 2 आंसर आए अभी तक. The answer is either false or not given. 2 आंसर आए. Nobody has. चलिए गोविंद जी, जय, आंसर दीजिए भैया. इसमें कहाँ है? You know there is no.
It should be false, not given. Okay, okay, okay. Anybody? I want you people to give your sincere effort. Okay, let me explain now. देखिए, usually you'll find out you'll find difficulties in identifying the difference between false and not given. अब देखिए, let us try to उसको bifurcate करते हैं. Some scientists, some synthetic biologists work with genetic circuit of mammals. Some, मैंने बताया था some ये बड़ा difficult चीज है, ये वर्ड है ना, ये बहुत परेशान करता है. So लिखा है कि some synthetic biologists work with genetic circuit of mammals, और यहाँ पे लिखा है most of today's synthetic biologists work with simple microorganisms like E. coli or yeast. Okay, तो मोस्ट का मतलब होता है एज्यूम करते हैं. लेट अस एज्यूम, मोस्ट का मतलब अगर फर्ज करो कि 100% है 100 में से, मोस्ट का मतलब फर्ज करो कि 80% है. तो पैराग्राफ ये कहना चाहता है कि ज्यादातर 80% सिंथेटिक बायोलॉजिस्ट वो ई कोली और इसके साथ काम करते हैं. अब अगर मैं 100 मान के चलता हूं, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 100%, और 80% सिंथेटिक बायोलॉजिस्ट वो लोग पैराग्राफ के हिसाब से ई कोली और इसके साथ काम करते हैं. तो बाकी जो 20% है वो सम हो गए. मोस्ट 100 में से 80% मतलब मोस्ट हो गए. मोस्ट का मतलब ये हुआ कि 100 में से ज्यादातर, लेकिन काफी सम ऐसे हैं जो बाकी रह जाते हैं. वो शायद हमें पता नहीं कि ई कोली के ऊपर काम करते या इस पे काम करते हैं. तो यहाँ पे लिखा है सम सिंथेटिक बायोलॉजिस्ट वर्क विद जेनेटिक सर्किट ऑफ मैमल्स. हमें ये पता है कि ज्यादातर लोग ई कोली और इस पे काम करते हैं, लेकिन जो बाकी रहते हैं जो 20% है, वो जेनेटिक सर्किट ऑफ मैमल्स पे काम करते हैं या नहीं करते, उसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. वो लोग शायद मैमल्स पे काम कर भी सकते हैं, वो शायद मैमल्स पे काम नहीं भी कर सकते. और मैंने आपको बताया था कि नॉट गिवन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है. नॉट गिवन का मतलब ये भी है कि शायद ये इंफॉर्मेशन सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. यही दुविधा इधर भी है. जैसे कि यहाँ पे देख सकता हूं मैं कि ज्यादातर मोस्ट लोग तो इक्वली और इस पे काम करते हैं. अब 100 में से मोस्ट माइनस कर दूं तो सम रह जाएंगे. उस सम के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो मैमल्स पे काम करते हैं या किसी और चीज पे काम करते हैं. और यहाँ पे लिखा है कि वो लोग मैमल्स पे काम करते हैं. ये चीज सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. इसका मतलब ये हुआ द आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी नॉट गिवन. क्लियर और नॉट एवरीबडी? इससे ज्यादा अच्छी तरह से मैं समझा नहीं पाऊंगा. क्लियर? यस और नो? आई वांट यू पीपल टू गिव मी द आंसर. या वेरी गुड. ठीक है, तो पता चला ये मोस्ट था. सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ओके फाइन. नाउ लेट अस गो फॉर द थर्ड वन. अब देखिए ये क्लियर कर देगा आपका. यहाँ पे अगर थोड़ी सी भी दुविधा है तो वो क्लियर हो जाएगा थर्ड में. अब बताइए क्या आंसर है. अगर आप सेकंड समझ पाए तो थर्ड का आंसर सही दोगे. शांति से, कोई टेंशन नहीं है. वेरी गुड. आई एम वेरी हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर. ये हो जाएगा आंसर इज गोइंग टू बी, इसका आंसर जो होगा दैट इज गोइंग टू बी फॉल्स. क्यों? क्योंकि अगर हमने वहां पे क्या था, यहाँ पे इसको ये रहा मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक बायोलॉजिस्ट वर्क विद मैमल्स, और यहाँ पे लिखा है मोस्ट ऑफ टुडे सिंथेटिक बायोलॉजिस्ट वर्क विद सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक ई कोली और ईस्ट. मतलब तो ये तो पूरा अलग ही कर दिया है इन्होंने. यहाँ पे मोस्ट में ऐसा लिखा है कि दे आर वर्किंग विद ई कोली और ईस्ट, और यहाँ पे लिखा है कि दे आर वर्किंग विद मैमल्स. तो आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी फॉल्स. आगे का नॉट गिवन इसलिए था कि वो सम था और हम सम के बारे में पता नहीं कर पाते थे, इसलिए वी गिव द आंसर एज नॉट गिवन. इज इट गेटिंग क्लियर एवरीबॉडी?
श्योर करनी है और प्रैक्टिस के खत्म करें लेक्चर? एवरीबडी वांट टू डू मोर प्रैक्टिस? यस और नो? ओवर फॉर टुडे? कल करें सर? ओके 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 फाइन, लेट मी नो व्हाट यू नीड। ओके काम करते, लेट अस डू अ स्मॉल छोटा सा पैसेज करते। चलिए एक मिनट, मैं एक छोटा सा पैसेज देता हूँ। चलिए ये कीजिए, गेट बी द आंसर ऑफ दिस। ओके कीजिए। चलिए, द पैराग्राफ इज ऑन द राइट हैंड साइड एंड क्वेश्चन इज ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड। Okay, fine. Let me explain you, students. I'm reading the question. Chiswick Polytechnic was closed at the same time West Thames College was opened. So Chiswick Polytechnic was closed at the same time. West Thames उसी टाइम पे बंद हुई थी जिस टाइम पे West Thames College open हुआ था. I'll read the passage now. West Thames College, initially known as Hounslow Borough College, came into existence in 1976 following the merger of Isleworth Polytechnic with a part of Chiswick Polytechnic. Both parent colleges in various guises matlab various forms, enjoyed a long tradition of service to the community dating back to the 1890s. और नीचे का भी पैराग्राफ मैंने रीड कर लिया है. कैन यू टेल मी कहाँ पे दिया है ऐसा कि चीजविक पॉलिटेक्निक उसी टाइम पे बंद हुआ था जिस टाइम पे वेस्ट थेम्स कॉलेज ओपन हुआ था? मर्जर हुआ था उसके बारे में जिक्र है, लेकिन मर्जर के ऊपर से आप ये कतई ही नहीं कह पाओगे कि ये, फॉर एग्जांपल, मर्जर के ऊपर से ये नहीं कह पाओगे कि उसी टाइम पे बंद हुआ था या चालू हुआ था. आपको मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, मुझे कृपया इतना बताए कि वेयर इट इज मेंशन that Chiswick Polytechnic was closed at the same time West Thames College was opened. You have got two paragraphs in front of you. Kindly let me know where in the paragraph it is given that Chiswick Polytechnic was closed at the same time. कहाँ लिखा है? लेकिन डेटिंग बैक है, लेकिन उस टाइम पे बंद या चालू हुआ था वो कहाँ लिखा है? मुझे बताएंगे कि चिजविक पॉलिटेक्निक उसी टाइम पे बंद हुआ था जिस टाइम पे वेस्ट थेम्स कॉलेज चालू हुआ था. मुझे बताएंगे कौन सी जगह पे लिखा है? इन द फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, कहाँ पे लिखा है? वेयर इट इज मेंशन. आप उसके तर्क वितर्क मत लगाइए. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू यूटिलाइज योर एक्सटर्नल नॉलेज. आप MBA हो, कहीं पे भी हो, मुझे बताया कहाँ पे लिया है? कहीं पे भी नहीं दिया है. इट इज गिवन नोवेयर. एक्सप्लेन. चिजविक पॉलिटेक्निक उसी टाइम पे बंद हुआ था जिस टाइम पे वेस्ट थेम्स कॉलेज ओपन हुआ था. वो कहाँ लिखा है इस पैराग्राफ में? Nowhere it is mentioned. The answer is going to be not given, क्योंकि कहीं पे भी इसके बारे में जिक्र नहीं है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? आपने सिर्फ छोटा सा ये याद रखना है. डोंट ट्राई टू कॉम्प्लिकेट. देखिए, ज्यादातर बच्चों को ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन में
प्रॉब्लम्स आती है और प्रॉब्लम्स रहेगी। पहले तो ये मान के चलना है कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन इज वन ऑफ द मोस्ट फियरफुल पार्ट्स ऑफ IELTS। तो पहले तो ये सोचना है कि आपको अकेले को प्रॉब्लम नहीं है, 100% लोगों को प्रॉब्लम है। पहले तो ये मान के चलना है। हमें क्या करना है कि जितना हो सके उतना गलती होती है उसको कम करना है। आप एकदम छोटे सी चीज मान के चलो कि चीजविक पॉलिटेक्निक उसी टाइम पे बंद होती है, इतना एकदम सिंपल कर दो। डोंट ट्राई टू कॉम्प्लिकेट योरसेल्फ। बच्चे क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेशन कर देते हैं। सर इसका मतलब तो ये हुआ भैया, आप MBA पढ़े लिखे हो तो आप बाजू में रखिए। आप ऐसा मान के चलो कि मैं 18-19 साल का बच्चा हूं जिसके पास सिवाय इंग्लिश के नॉलेज के कुछ नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करता? तो वो तो यही सोचता ना कि चीजविक पॉलिटेक्निक बंद हुई है उसी टाइम पे वेस्टर्न्स कॉलेज ओपन हुए, वो कहाँ लिखा है? नोवेयर इट इज मेंशन्ड। द आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी नॉट गिवन। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? यस, ओके फाइन, लेट अस गो अहेड नाउ। दूसरा देता हूं, चलिए छोटा सा, सेकंड और थर्ड दोनों करना है आपको। बस ये दो ही करेंगे और नहीं करेंगे, परेशान नहीं करूंगा मैं आपको। ओके, सो लेट अस सॉल्व इट। सॉल्व करते हैं उसको। ओके, लेट मी रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। यू वांट टाइम? टाइम चाहिए आपको? यू वांट टाइम टू सॉल्व? ओके, आई एम गेटिंग आंसर्स। हाँ, शांति से कीजिए, चलिए। Okay, shall I solve? Okay, let us see. Okay, so let me solve the answer. Question में लिखा है, question number 2 I am reading. Most of the students at the college come from outside the local area. ज़्यादातर बच्चे जो है कॉलेज में आते हैं वो लोकल एरिया, मतलब आजू बाजू के एरिया के बाहर के हैं। एंड इफ आई रीड, इट इज गिवन इन, यहाँ से शुरुआत करते हैं। In fact about, okay, let us see. In fact about 8% of its students come from continental Europe. मतलब 8% बच्चे यूरोप से आते हैं। ये जो कॉलेज है वो लंदन में है, वेस्ट लंदन में है, देखिए हार्ट ऑफ वेस्ट लंदन। सो जो टोटल बच्चे हैं उसमें से 8% ऑफ द पीपल और 8% ऑफ द स्टूडेंट्स come from continental Europe, and further afield a further 52%। तो पहले तो 8% और दूसरे 52% are from outside the immediate area. Now this is a word which has been utilized instead of local.
सो लोकल का मतलब होता है इमीडिएट, लोकल का मतलब इमीडिएट का मतलब आजू बाजू के एरिया में से. सो इफ यू कंसिडर दैट वे, देन एक तो 8% और एक 52%. सो 8% बच्चे जो है वो यूरोप से आते हैं, कॉन्टिनेंटल यूरोप से, and 52% of the students are coming from outside of the local area. So you can say that total 60% of the people are coming from outside of the local area. इसका मतलब 50% से ज्यादा, that means most हो गया. Answer of this is going to be true. तो second का आंसर आएगा true. Now let me give you the answer of third one. The college changed its name to West Thames College in 1993. अब आपको ये पता चलना जाना चाहिए कि अगर सेकंड का आंसर यहां तक था, इसका मतलब मुझे थर्ड का आंसर इसके पहले ढूंढने की जरूरत नहीं है. आई नीड टू फाइंड आउट माई आंसर यहां, इसके बाजू, इसके नीचे ही होगा. व्हाई वुड आई वेस्ट माई टाइम नो लुकिंग एट फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकंड पैराग्राफ. तो मेरा आंसर यहां से शुरुआत होना चाहिए. अगर है तो, हो सकता है ना भी हो, तो मैं यहाँ पे पढ़ूंगा सिंस 1 अप्रैल 1993 when it became independent of the local authority and adopted its new title. क्वेश्चन में लिखा है कॉलेज चेंज इट्स नेम टू वेस्ट थेम्स कॉलेज इन 1993. वही चीज यहाँ पे लिखी है कि 1 अप्रैल 1993 से वो इंडिपेंडेंट हो गया और उसने अपने नए टाइटल का इख्तियार किया. तो इसका तो आंसर ट्रू था, इसका भी आंसर ट्रू होगा. सो आंसर ऑफ सेकंड एंड थर्ड आर गोइंग टू बी ट्रू. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट स्टूडेंट्स? आई होप इट इज अंडरस्टूड. गलत है सही है वो बात अलग है, आपका सही पढ़ा गलत पढ़ा वो बात अलग है, बट आई थिंक दैट आफ्टर एक्सप्लेनिंग यू शुड हैव अंडरस्टूड आप कहाँ पे गलती करते हो. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट स्टूडेंट्स? यस, shall we call it an end to the lecture? काफी टाइम हो गया आज, और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के बाद करने के बाद आपके पास ज्यादा क्षमता रहती नहीं है. सो बताइए मुझे क्या करना है. यस स्टूडेंट्स, shall we call it a day? ठीक है, बट आई होप थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ. हैव यू अंडरस्टूड पीपल, वेयर यू आर कमिटिंग द मिस्टेक, कहाँ पे गलती करते हो, कहाँ पे ध्यान रखना है, कैसे करना है इसको? हैव यू अंडरस्टूड एवरीथिंग गाइस? ऐसा करते हैं, मैं जब दूसरा लेक्चर लेता हूँ, व्हेन आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट लेक्चर, आई विल बी ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. ठीक है, ऐसा करना है. मैं सिर्फ ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन आपको, या प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस तो इसके अलावा तो ये मुश्किल है. बट हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम व्हेन आई टेक द लेक्चर, प्रॉब्ली एक या दो दिन के बाद, आई विल कॉन्सेंट्रेट ऑन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. मेक श्योर दैट यू पीपल रिमेन प्रेजेंट. आई मीन गोविंद, मेक श्योर दैट गिरीश इज आल्सो देयर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. या ये पीपीटी मैं देख लूंगा, ये मैं कर लूंगा. मैंने बीजल मैम की जो लेक्चर था उसकी पीपीटी आपको भेज दी है. सो आई विल सेंड द पीपीटी ऑफ दिस लेक्चर एज वेल. क्लियर? थैंक यू सो मच. Yeah, I am now ending the lecture. Thank you so much, students.